That event cost 30 lakh rupees for just 2-3 days. It's a very interesting practice जो मुझे लगता है किसी भी बिजनेस ओनर या किसी भी मैनेजर को करनी चाहिए अपनी टीम के अंदर। उन्होंने कहा कंपनी में 5 टेयर्स के लोग होते हैं। Now what I'm doing practice right now is I'm just making a sheet doing from 1 to 5 and I'll see the average of the company. So हम जो लेवल 2 वाला जोन था, टेयर 2 वाला जोन था, उसके काफी क्लोज थे। ये माइंडसेट का गेम है। मैं ये नहीं कह रहा चौथा बंदा बेकार है, फर्स्ट बंदा बढ़िया है। सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, माइंडसेट और इंटेंट। कि इंटेंट ज्यादा होगा तो वो फर्स्ट पे होगा, इंटेंट कम होगा तो वो फिफ्थ पे होगा। अरे एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, अपने हाथ को ऐसे बंद करो, कंफर्टेबल। अब बस इसको ऐसे बंद करो। थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? फिजी से फील नहीं हो रहा? कुछ गलत है। दिस इज व्हाट व्हेन एनीबॉडी गेट्स इनटू अ न्यू पोजीशन लाइक you. So initially it will be uncomfortable. We actually executed this also. It's our job only. I think it was a very interesting practice. So recently I went for a dinner with one of my brands and they conducted a event in their company. That event cost 30 lakh rupees for just 2-3 days and they were with a management company who was helping to solve their management level problems on the organizational level, and it's a big 300 people company. So I asked them कि guys what were the things that you guys did there? क्या सीखा, क्या नहीं सीखा? तो 30 लाख रुपए का वसूल किया या नहीं किया? So actually team gave me very good ideas. They told very innovative approach of seeing things. They showed very interesting perspectives to show things. तो उनमें से ना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कंपनी में 5 टेयर्स के लोग होते हैं। सबसे पहले टेयर 5 की बात करते हैं। टेयर 5 इज वो बंदा कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, that action will be performed to harm the company only, nothing else. Fourth tier, it's a minimum guy, so he will be trying to avoid work. If you will give work, he will do the work. No initiatives, but will try to avoid the work. Third tier, average guy, जो काम दिया वो काम कर लेंगे, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, और जो काम किया अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। Second tier, tier 2 is very interesting. So the vision is set. The team is very aligned to the vision. They understand the vision and they work to reach that vision according to them. But they are great followers, but not initiators. And that is where the first one comes. Vision is there, but they are the initiators and they set the processes. Okay. They don't just follow the processes, they even set the processes. पांचों ही तरह के लोग एक कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। And next thing that they did was they individually ask everyone कि आपको क्या लगता है आपकी कंपनी का एवरेज कहाँ फॉल करता है? 1, 2, 3, 4, 5. You know, they were trying to simulate कि लोगों का अप्रोच अपने कंपनी को लेके क्या है। In their company, majority of people voted for 4th and some people voted for 3. So they were reaching into 3 and the 4th zone category. So I asked the brand. So the गुड पार्ट अबाउट दिस ब्रांड स्पेसिफिकली, इनका इंटरेक्शन हमारे साथ बहुत रहता है और ये हमारे ऑफिस में भी काफी बार आए हैं और इस बार भी हमारे ऑफिस में 3 दिन के लिए आए थे। एंड यू नो दे वेंट टू द प्रोडक्शन आल्सो, दे सैट द एंटायर डे विद द टीम एंड वन डे वाज विद मी। तो दे अंडरस्टैंड आवर टीम वेरी वेरी वेल। सो आई आस्क्ड देम कि गाइस व्हाट डू यू थिंक, वेयर डज आवर टीम फॉल, बिकॉज़ यू वर्क फ्रॉम द लास्ट 1 साल से आप हमारे साथ काम भी कर रहे हो और आप हमारी टीम को बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो दे सेड आर्चव द ग्रेट पार्ट अबाउट योर टीम इज ना दे आर हाईली मोटिवेटेड। इवन इफ जब मैं भी प्रोडक्शन डे पे नहीं था ना, तो everybody was so aligned to the vision and they were highly motivated. So they said anything less than 2 is injustice to your team. So second tier तो है ही है। So I was just sitting and you know I wanted to do this practice. So I made a sheet and I'm trying to simulate कि हमारे एवरेजेस क्या है। आई कांट शेयर दिस बट या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस जो मुझे लगता है किसी भी बिजनेस ओनर या किसी भी मैनेजर को करनी चाहिए अपनी टीम के अंदर। बिकॉज सी गाइस, एवरीबडी कांट बी 1, एवरीबडी कांट बी 2, एवरीबडी कांट बी 3, राइट। और सारे 1 होंगे ना तब भी दिक्कत है, सारे 2 होंगे तब भी दिक्कत है, सारे 3 होंगे तो दिक्कत है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या एवरेजेस हैं डिपार्टमेंट वाइज ऑल्सो, तो जिससे कि हम चीजें थोड़ी फिगर आउट कर पाए। ओके गाइस, सो दिस इज अनन्या, यू गाइस नो हर ऑलरेडी, दिस इज शिवम. So he has joined us recently in the HR team. So yeah, so guys, I'll tell you a very interesting concept. So now what I'm doing practice right now is I'm just making a sheet. तभी मैं salary sheet से निकाल रहा था. तो now I'll be doing from 1 to 5 and I'll see the average of the company. I know who do what, right? I may be wrong 10%. I may I will be 100% right, but 90% I'll be right क्योंकि मैं बहुत लोगों से connected हूँ, है ना? तो then we'll figure out where do we stand. One important and not just the company, the department, क्योंकि हर department सेम नहीं होता, right? There are department जहाँ पे उस department का average 1 हो, क्या पता, but that department यहाँ पे 4 हो। तो we also know as a team कि कहाँ पे हमें ज़्यादा काम करना है on that mindset. This is mindset.
ये माइंडसेट का गेम है। मैं ये नहीं कह रहा चौथा बंदा बेकार है, फर्स्ट बंदा बढ़िया है। सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, माइंडसेट और इंटेंट। कि इंटेंट ज्यादा होगा तो वो फर्स्ट पे होगा, इंटेंट कम होगा तो वो फिफ्थ पे होगा, ठीक है ना। फिफ्थ पे तो तभी होगा जब तुमने कुछ गलत किया होगा, अलग बात है, ठीक है। फोर्थ पे होगा, पर्सनल ग्रजेस होंगे। तो दैट्स द की। एंड फिर मैंने 7 से पूछा भी था, जो कल ब्रांड है कि गाइस, सो वो हमारे ऑफिस में बहुत बार आते रहते हैं एंड हमारी टीम से बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। आई आस्किंग 7 व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू वी स्टैंड, कहता है एनीथिंग लेस देन 2 इज अ प्रॉब्लम। मतलब कि हम मैं बोल सकता नहीं लेस देन 2। मैंने अभी 3 वाले बंदे से मिल ही नहीं पाया हूँ आपके ऑफिस में। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर हमारा क्लाइंट हमें बोल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट। और वो कुछ ऐसा हमारे को कोई शुगर उठाने की जरूरत भी नहीं है ना, हम मुझे क्यों बटरिंग कर रहा है, वो बोल सकता है 4 है तो कॉम्प्लीमेंट। तो बट आई आल्सो थिंक कि हमारे ऑफिस में कोई ऐसे नहीं, हमारे ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो कि एवरेज है। हाँ, वो हर जगह आएगी, कंफर्ट वो होने भी चाहिए ना। अब हर जना ही फर्स्ट बन जाएगा तो लड़ाई होनी चालू हो जाएंगी, है ना। तो थर्ड भी होने चाहिए, सेकंड। बट एवरेजेस की बात है, और मुझे लगता है हमारा ऑफिस का एवरेज सेकंड पे बैठे। सी 30% लोग मिल आए इन द थर्ड, आई एम फाइन विद इट। बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू क्रिएट थिंग्स, राइट। बहुत सारे अफलातून लोग हैं हमारे पास। 30% फर्स्ट में भी आएंगे, 30 कितना हुआ, और 40% बीच में आ जाएंगे। उनको पता है हमारा ये विजन है और हम अलाइंड है और शिद्दत से काम कर रहे हैं। शिद्दत वाले लोग हम पे बहुत हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब क्रिएटर हैं, पर शिद्दत से काम करने वाले तो बहुत। तो आई थिंक वी हैव अ सेकंड एवरेज। बट अभी मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंटल निकालना चाहता हूँ इस चीज़ को, तो आई थिंक आई विल नो थिंग्स मोर। खुद प्रैक्टिस करोगे आपके लोगों से करवाओ? खुद लोगों से कराऊंगा। उनसे भी तो पूछ सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं। कैप्टन के साथ बैठ सकते हैं, कैप्टन के साथ डिपार्टमेंट इंटरेस्टिंग है ना। तो उन लोगों ने ये इवेंट में किया था। हाँ, तो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ भाई, इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग है ना। अरे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अपने हाथ को ऐसे बंद करो, कंफर्टेबल। अब बस इसको ऐसे बंद करो ऊपर की तरफ, जैसे नीचे है ना ये, इसको ऐसे बंद करो। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, फिजी से फील नहीं हो रहा कि गलत बात, कुछ गलत है। हाँ। अब वापस करो, अब ऐसा लग रहा है हाँ नॉर्मल है जैसा। बट जस्ट एक उंगली ऊपर करो, मतलब वापस बैक टू दैट ओल्ड पोजीशन। नहीं पूरा, कुछ there's something wrong and see there's something wrong in this. See, एक अंगूठा ऊपर है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी एक अंगूठा ऊपर नीचे है, but for some reason left अंगूठा has to be always on the top to be more comfortable. I don't know why. But so psychologically, you know, this is what management is. So when something changes, it is uncomfortable. You do this continuously for 10 days every morning, like for some time. This also becomes comfortable. So this is what when anybody gets into a new position like you. So initially it will be uncomfortable, but after a point of time you will feel comfortable. You need to give time. So I think it's a very interesting thing you guys can do an induction. Good यार, smart यार। ठीक है। So consider this is a situation, but it will get this. But give it time. Do not expect things. मतलब हम भी आपसे day 1 पे कुछ expect नहीं कर रहे ना, तो आप भी मत करो हमसे। तो give each other time to absorb things, right? तो इससे क्या होता है कि बट एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। इट्स अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक हम इंडक्शन में कर सकते हैं, याद रखना, है ना। और एचआर ही सब, एवरीथिंग इज एचआर गाइस। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो yesterday it went very late जब मैंने वो डेटा कंप्लीट किया। डेटा तो मैं नहीं दिखा सकता आपको बिकॉज यू नो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, एंड मैंने कुछ कैप्टन्स को भी रेफर किया था while I was making that data, so you know I can understand the team a little better. So 3.8 was the average of the company that came out of 5. So हम जो level 2 वाला जोन था, tier 2 वाला जोन था, उसके काफ़ी क्लोज थे, which is a very good thing, ठीक है। बट सी some do's and don'ts, अपने पास तक रखना information, it's not a public information, and do not think like if there are people at the 4th level they are bad. No, it's your duty as a founder and a manager and a captain to make people give that reason that they become a 3, become a 2, become a 1, because ये होता है। So हमारे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट था, बहुत scattered था, बहुत सारे issues थे, deliverables पूरे नहीं थे, plus people were questioning the intent of the people. There was a change in the management later on that we did. Today, those 4 people are the one, 0 deliverable issue. They take care of a very big responsibility on the top of the previous responsibility, and the team works like a pro. तो
it's a work of a leader. It's a game of a leadership, that how they can get their team work. It's not their job, and I'm telling you, people are not bad. It's just the management situation and the dynamics that make them look bad. So it's our job only. So I think it was a very interesting practice. Few actions that I will be taking now after making this data is there were only 6-7 people who came in the first tier. A lot of people were in second, a lot of in third, few were in fourth also. So my job is to identify people and try my level best and start with the captains to make people go in a tier above it. So and उसके लिए हम बहुत सारे practices कर सकते हैं. We can make people upskill. One, we can give people more challenging things to do. When that will happen, 110%, they feel more motivated, they feel more intent, and they work towards a vision more. Third, सिटिंग विद देम. सी, सामने वाले के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और उनका विजन क्या है लॉन्ग टर्म वो समझना ज़रूरी है. इफ समबडी हैज सर्टेन लॉन्ग टर्म विजन्स, सैट विद देम एंड फिगर आउट कि कैसे आप अपने वर्किंग को और उसके लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग को अलाइन करा सकते हो, जिससे कि वट एवर दे आर डूइंग हेयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर पर्सनल ग्रोथ. सो या, it was a very interesting conversation and we actually executed this also, and हमारे लिए भी बहुत अच्छी learnings थी. But हाँ, इससे देखो एक चीज़ guys figure out होती है, you know, nobody is gonna come and make you learn things. It's totally depend on you, how you observe things, how you work on it and how you execute it. So पार्थ, क्या लगता है, कैसी थी ये एक्टिविटी? बहुत सेक्सी, मतलब इससे अच्छी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी. बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं मैनेजमेंट साइड पे, अपकमिंग लीडर साइड पे, तो वर्कआउट करेंगे इस पर. And like you know the color psychology that I was telling you, so उस color psychology के लिए भी will definitely do one event for an entire day. वो 1 घंटे के इवेंट में नहीं हो सकता, पूरे दिन भर उसको एक दिन करेंगे. We'll figure out how to do it, but I think it will be a very interesting one. So yeah, I hope you liked the video. It was a very interesting one, very unfiltered and the candid conversation, and we will make sure we'll keep on bringing you these kind of information every day at 7 a.m. So yeah, see you tomorrow morning 7 a.m. Tata, bye bye.